IMF نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دی۔ مالی سال 2027 کے بجٹ میں گیس اور بجلی کے نرخوں میں تبدیلی شامل۔ IMF نے پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ گیس ٹیرف میں جولائی 2026 اور فروری 2027 میں تبدیلی متوقع۔ بجلی کے نرخ جنوری 2027 میں ایڈجسٹمنٹ کیے جانے کا امکان۔ نیب کو مزید خود مختار اور شفاف بنانے کی شرط بھی شامل۔ مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 ہو گئی۔ نئی شرائط کا مقصد بجٹ، نظم و ضبط، ٹیکس نظام اور معیشت کی بہتری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا پاکستان نے بیشتر مالی اہداف پورے کر لیے، کچھ ٹیکس اہداف اور اصلاحات مکمل نہیں ہو سکیں۔ پاکستان معیشت کے حالات کی سمت واضح نہیں۔ خدشہ ظاہر کیا ایران جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی، جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کو متاثر کرے گی۔ IMF کا پاکستان کی معاشی بحالی میں پیش رفت کا اعتراف۔ پہلی شش ماہ میں GDP کی نمو میں تیزی آئی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ متوازن اور مہنگائی قابو میں رہی۔ زر مبادلہ کے ذخائر سابق اندازوں سے بہتر رہے۔ سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران کے درمیان عدم جارحیت سے متعلق معاہدے کی تجویز دے دی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا سفارتکاروں کے حوالے سے دعویٰ، کہا سعودی عرب نے معاہدے کی تجویز پر اتحادی ممالک سے بات چیت بھی کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کو سنبھالنے پر غور ہوا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ریاض 1970 کی دہائی کے ہلنسکی عمل کو ممکنہ ماڈل کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے خلیجی ریاستیں کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد زخمی مگر زیادہ سخت گیر ایران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ اختلافات کے باوجود پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے قرار دیا کہ چین امریکہ تعلقات کا استحکام دنیا کے لیے مثبت اقدام ہے۔ عالمی امن اور معاشی ترقی کو برقرار رکھنا دونوں ممالک کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ مزید کہا دنیا اس وقت ایران تنازع اور عالمی سپلائی چین کے سنگین چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ کیا ہم اپنی دنیا اور اپنے عوام کے لیے ایک روشن مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب بڑے ممالک کے رہنماؤں کی حیثیت سے ہمیں دینا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا صحیح راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چینی صدر کو خراج تحسین، کہا صدر شی جن پنگ سے ملاقات اور ان کا دوست ہونا باعث اعزاز ہے۔ پوری قوم یکجاں دو قالب تھی اور افواج پاکستان نے انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مارکہ حق میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا گیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایٹمی قوت دفاع کے لیے ہے اور دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پر جانتی ہے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں تمام جماعتوں کا کردار ہے۔ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے میں نواز شریف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم عظیم قربانیاں دے رہی ہے۔ پاکستان کو معاشی قوت بنانے کے لیے سب کو مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں قومی اور انتظامی امور پر اہم فیصلے۔ گندم خرید و فروخت کے مسائل پر کابینہ کمیٹی تشکیل۔ حج پالیسی 2027 سے 2030 کی سفارشات منظور۔ اسلام آباد میں کم لاگت ہاؤسنگ منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ کسٹم افسران کے ترقیاتی امتحانات FPSC کے ذریعے کرانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور امن استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال۔ کوویڈ کو پرانے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی اور علاقائی استحکام کے لیے سفارتی رابطوں کا تسلسل برقرار رکھنے اور قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری پال کپور کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔
वज़ीर आज़म ने तस्दीक की ईरान का जवाब फौरी दूसरे फरीक को भेजा गया था। पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात किसी हमसाय के एक दौरे से मुतासर नहीं होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। हम इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्दअमल के मुंतज़र हैं। अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरा चीन की तारीखी फाइनल होने पर ऐलान करेंगे। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात तकसीम की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के लिए इस्तारा बसालत बेमिसाल कारकर्दगी पर एयर मार्शल काशिफ कमर, गैर मामूली खिदमात पर एयर मार्शल आमिर शहजाद, मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबरू और मेजर जनरल सब्तेन रफ़ी को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, मेजर जनरल मलिक मकबूल रजा, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, मेजर जनरल एजाज अहमद समेत दीगर अफसरान को भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बांड जारी कर दिया। सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली पज़ीराई। 1.75 अरब युआन मालियत के पांडा बांड के मुकाबले में 8.8 अरब युआन की पेशकश मौसूल। अलामिया के मुताबिक बांड को ज़रूरत से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा डिमांड हासिल हुई। पांडा बांड पर 2.5% शरह सूद अदा की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पांडा बांड का कामयाब इजरा को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा, इक़दाम पाकिस्तान की आलमी मालियाती मंडियों में मजबूत वापसी का मजबूत इशारा है। आम दुश्मन अनासर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से खाइफ। बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, मोतबर मुकामी मीडिया और फैक्ट चेक फोर्सेस ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम से बाज़ अनासिर परेशान हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मुल्क की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दुश्मन को बलूचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही है। 28वीं आईनी तरमीम बारे कोई बात नहीं हुई। हमारी हिमायत के बगैर तरमीम मंजूर हो सकती है, न बजट। कमिटमेंट पूरी ना की गई तो फैसलों पर नजरसानी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब होंगे। खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत में जा रही है। बिलावल ने हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। परवेज अशरफ, सलीम मांडीवाला, शरी रहमान और नवीद कमर कमेटी में शामिल। मसला अब किबला अव्वल से ईरान तक पहुंच गया। अरब ममालिक से कहता हूँ ये एक होने का वक्त है। आए एक दिफाई कुव्वत बनकर उम्मत का दिफा करें। अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम नफरत तासुब के कायल नहीं, इख्तिलाफ पर बात करें, सलीके और शाइस्तगी के साथ करें। पाकिस्तान से मोहब्बत की सियासत कर रहे हैं। किसने क्या क्या ताइफ वसूल किए। तोशाखाना का 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी कोई सेट और तलवार, कीमती घड़ी, डेकोरेशन पीसेस ताइफ में मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज्वेलरी सेट, तलवार, मोबाइल फ़ोन, शील्ड और स्पेयर बाल पॉइंट आए बतौर तोहफा लिए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार को डेकोरेशन पीसेस, रोलेक्स वॉच और दीगर कीमती ताइफ दिए गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी को ज्वेलरी सेट और रवायती लिबास दिया गया। वफाकी वज़रा, मशीर और वफाकी सेक्रेटरीज भी ताइफ हासिल करने वालों में शामिल।
सुथरा पंजाब में बदउनवानी बेनकाब, वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का बड़ा एक्शन। पहली बार किसी वज़ीर-ए-आला ने अपने ही इदारे का एहतसाब करते हुए केस सरेआम एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बहारी के मुताबिक लाइव डैशबोर्ड मॉनिटरिंग के जरिए फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बदउनवानी का सुराग लगाया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने फौरी नोटिस लेते हुए खुसूसी ऑडिटर्स टीम फैसलाबाद रवाना कर दी। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी पंजाब हुकूमत के रिडार पर भी आ गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने पिंकी नेटवर्क से मुतालिक आला पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिमा के मुबैना शोहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम भी तलब। CCD पूछगछ करेगी। ज़राए का कहना है लाहौर में दर्ज मुकदमे में तलबी करवा कर मुलजिमा को लाहौर लाया जाएगा। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। बताया एक अफसर ने इसके भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ा। इब्तदाई तफ्तीश में कराची में माहाना 2 करोड़ से जायद की मंशियात बेचने का इंकशाफ। ज़ेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स किसी और के नामों पर रजिस्टर्ड निकली। मुलजिमा के मुताबिक लाहौर से मंशियात बेचने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर किसी और नाम से बैंक अकाउंट खुलवा लिया। मंशियात की रकम मोबाइल ऐप से भेजी और वसूल की जाती। साबिक शोहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट थे। पुलिस से बचने के लिए साबिक शोहर मंशियात वकील भाइयों के चेंबर्स में रखता। मुतादिद थानों को लाखों रुपए महाना देने का भी इल्जाम। एक पुलिस एहलकार का धंधे में मुलव्वस राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ रिश्वत ली। छह भाई 4 बहनें, सभी के सभी मंशियात के धंधे में मुलव्वस। तफ्तीशी हुकाम ने बताया पिंकी के 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आया। रियाज बलोच, मोहम्मद नासिर और शौकत बख्श मंशियात फरोशी में मुलव्वस। असलहा ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शौकत बख्श मंशियात फरोशी के लिए खास कारिंदा। 2024 में बोट बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हुआ। एक मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार किया गया। इस पर इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमने भी इस खातून को गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर हमें कामयाबी न मिल सकी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेरे इल्म में आज तक 28वीं तरमीम की कोई बात नहीं। मेरी इत्तलात के मुताबिक विफाकी हुकूमत की जानिब से किसी तरमीम की बात नहीं की गई। कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों के मुबैना लीक होने का मामला। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। O लेवल मैथ का पर्चा लीक होने पर हुकूमत और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना था मामला पर्चा चोरी का लगता है। कैम्ब्रिज हुकाम के इम्तिहानी निज़ाम में शिफाफियत और सख्त सिक्योरिटी इक़दामात की यकीन दहानी। एक और इम्तिहानी पर्चे के मुबैना लीक पर भी हुकूमत ने वज़ाहत तलब कर ली। कैम्ब्रिज का इम्तिहानी निज़ाम में खामियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए सिस्टम मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। आसमानी बिजली गिरने से मियांवाली में 4 और डीजी खान में 2 अफराद जख्मी। लस्को के 124 फीडर स्ट्रिप और लाहौर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। फैसलाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, शोरकोट और 18 हजारी रुकन और बारखान में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश की पेशगोई।